Good. ठीक है, जस्ट व्हाट आई वाज टेलिंग इज, मैंने मेरे एक्सपीरियंस से मैं आई हैव फाउंड आउट कि इसका नंबर क्या है. बेस्ट नंबर इज 11128. We will see how to identify this. Now, can anyone tell me how we can how we can come to know the rates of 44? Divide the circle by 44. 44 डिवीजन, इसको 44 डिवीजन में कर दीजिए. So, what do you think, without going into the software of that Inkscape, can anyone tell me approximately, not the where this line will come? It will come in one. ये साहिल है ना, साहिल का नंबर है ना, come in the second बात कर रहा हूँ उससे, of the 44 division. So 44 डिवीजन है, सर्कल में करेंगे तो कहाँ कहाँ क्या क्या आएगा? यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ के 11 आएगा, यहाँ 22 आएगा, यहाँ 33 आएगा, यहाँ 44 आएगा. Any doubt? So Inkscape is getting installed. So we will see the next card. हरमीत मैडम ने हमको भेजा है. We will see the other cards also. Find and rectify all defects. ये भी मस्त चीज है ना? There are so many commands in our numerical Mathematica. The words are very excellent. So, can anyone tell me what is the base 10 rate of this card? ये 1 में 1 का सेक्टर में आएगा. This is 2, this is 3 and 4, 4. 1, 2, 3, 4, 4 is the base 10 rate of this card. When you divide this card into 44 division, then ये किधर आएगा? This will come around 5. It will come around 7. It will be 13, 16 and 19. This is base 44 rate of this card is. So ये सब मतलब कहना आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो डोंट इतना ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है. But if you want to make your own card, this is a advanced level of Vibronic course का एक टॉपिक मैं ले रहा हूँ क्योंकि हेलो सर, वो कार्ड भेजने लगा, देखो देखो सर. हाँ जी, हाँ भेजने लगा. okay. So we will see. अगर I think so हमारा ये रेडी हो गया. कौन सा? इंकस्केप बन गया लगता है. इंकस्केप इंस्टॉल्ड. कौन नंबर डिटेल की भेज दो मैडम, किस कौन सा अकाउंट में डाल होगी बैंक अकाउंट. एनी डाउट? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या बात कर रहा है.
Is there any doubt? So I'm not able to listen anyone. हाँ मैडम मैडम I'm ने very happy that आज बहुत ज्यादा भीड़ है. हाँ We are at least maximum we are वो कर दो सर, थोड़ा मैडम मीटिंग में है वो। हरमीत मैम थोड़ा माइक बंद कर लीजिए. okay. Come back again. Come again, sir. I was not able to listen correctly, so I just muted. Please come again. नो इशू सर, आप प्रोसीड करिए. हाँ. Okay, Inkscape. It's very interesting today. इसके ऊपर ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने का, बिकॉज इट इज एडवांस लेवल का ये टेक्निक है. सो यू मे गेट सम डिफिकल्टी बट आ जाएगा. यू विल कम टू नो. Yes. New version of Inkscape is loading. Everybody can freely download this. कोई भी ये नहीं है. There is no any restrictions. लेकिन इसके पीछे मत पड़ना. We have got so many cards. पहले उसको यूज करिए. But only rarely, by chance you need some card. ये आपको चाहिए but you don't have in your card slot. I mean जो 650 के अंदर नहीं आता. Nice. This is a new version they have loaded Inkscape. Like this it will open. The new Inkscape program will be opened like this. Now what we'll do, we will import this. Import one of the card. Where is that? Download. We have just downloaded it. Okay, find and rectify. Bring it here. Okay. Now what we'll do, we take one, how many corners we want? We want 10 corners.
Yes, you got it. Little bit you have to struggle because I have also struggled initially. है ना? So like that you can, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? ये बहुत इनिशियली आपको लगेगा, लेकिन एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ अ ट्रायल. मतलब you can make it thin 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 so that precisely you can locate. इसी के ऊपर और एक बार आप क्लिक करेंगे तो ये यू कैन मूव इट. ये उसको क्या है ना, वो जो ऊपर का जो लाइन है उसके ऊपर पक्का मार्क कर दीजिए. यस, एवरीबडी इज वाचिंग. ओके, नाउ 1 2 3 4 5. I'm not able to get from you. Yes, sir. Yes, sir. यस यस यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सो मैं क्या करेंगे इसको, आपको पता है उसका जो मार्क है उसके ऊपर हम अलाइन करने का कोशिश कर रहे हैं. Yes. यस, हाँ, ये हो गया ना. हाँ सो ये सर. आप देखिए, दिस फर्स्ट सेक्टर नंबर 1 2 3 4. मैं बोला बिल्कुल सही है ना. मैं क्या बोला था, इफ इट इज कमिंग अंडर सेक्टर 1, बेस 10 रेट ऑफ दिस इज, बेस 10 रेट ऑफ क्लास में दिस. डॉक्टर का. Yeah, डॉक्टर. base 10 rate of this is first is 1, then 2. Why I am writing this? 3, 4 and 4. Because this partial radii मतलब ये छोटे छोटे लाइन जो ड्रॉ किया ना, वो जो है कि कौन सी सेक्टर में आ रहा है, ये पता लगाने के, ये लगाने के बाद आफ्टर रीडिंग दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ 1 2 3 4 4 बेस्ड एंड रेट. सर, एनीबडी, एनी डाउट? नो सर, नो डाउट, नो डाउट. फैंटास्टिक. ना हम क्या करेंगे, इसी को, ये स्पोक्स को चेंज करके वी विल मेक इट 44 स्पोक्स, है ना? किधर है? 10 कॉर्नर था, उसको हम बना दिया 44. Why to put that 44 value? कॉर्नर कॉर्नर है ना अच्छा, इधर. कॉर्नर. ओके ओके, फाइन. तो आप इसको फिर से एक ऐसा ड्रॉ कर लीजिए. देन टेक दैट, अलाइन दैट. अभी इसको आपको खिचड़ी बन जाएगा. सो वी विल, व्हाट विल डू, लिटिल बिट इसको डल भी कर देंगे, डल. Opacity. हाँ, ऑपेसिटी करेंगे. दिस इज द एडवांस लेवल क्लास, सो डोंट वरी. Yes. So this is 1
Yes. Now what you have to do, just observe. मैंने जैसे बोला था, अभी देखिए, we will align it some more perfectly. Yes. Yes, like this. Yes, sir. हाँ, so ये देखिए कि these are the 44 spokes available है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना. सो आप अभी देखिए, दिस पार्शियल रेडिया है, कौन कौन से सेक्टर में आ रहा है. सर नंबर 1 में आ रहा है. अभी दिस इज फ्रॉम 1 2 3 4 5. तो 1 5. 1 कहाँ है? 1 में है ही नहीं है. 1 में कोई है? नहीं Sir, नहीं. is 5 नहीं. 9 1 3 5 9 1 3 6 7 8 9, उसके बाद 1 13 पे 13 हाँ 13 पे 1 3 1 3 5 9 1 3 5 9 1 3. तो कैन वी सी और कोई? हाँ 1 3, दैट मच ओनली ना. ओए, और भी है, देखिए इधर नीचे. दे आर 1 बिलो दिस, 1 बिलो दिस, ठीक है ना. इसको ओपेसिटी करने से देखते हैं. लेट मी चेक दिस. इसमें कर सकते हैं क्या? यस, इधर इधर है. यस, हाँ, यस सर. 1 3 then 14 अभी हम इसको 15 and then also 16. हाँ, अब देखिए सर, ओके, अब क्या होगा सर? क्या होगा. 5 हम्म 3, सॉरी 5 5 9. 6 7 8 9 हम्म 10 11 12 13 13 14 15 16 16. 16 and के अंदर है 17 17 18. ये 18. इतना जबरदस्त है वो, इतना जबरदस्त है, मतलब हार्डली थोड़ा इधर आएगा तो दे काउंट दिस नंबर. हम्म हाँ. सो ये समझिए, देखिए और भी एनलार्ज करके देखिए, लाइन के इस तरफ आ रहा है ना. You got the idea how Yes. means many your I think so all आजकल बेस 10 भी बना सकते हैं. इफ यू हैव इन योर मशीन बेस 44 का रेट भी बना सकते हैं. आई विल राइट बेस 44 रेट हियर. क्या रेट लिखेंगे इधर? 5 है ना. 5 6 7 8 5 9 6 7 8 9 13 13 13 and 16 16 and 18. 18, ठीक है. So this is how can we convert the any geometrical card into the radionic rate. And the same time how to, yeah, अभी ये you have understood very nicely, पक्का.
how to make a how to read the base 10 rate from this diagram, how to see the base 44 from this diagram of the, huh? और ये देखिए, ये they have also done this 1 2 3 4 4 they already लिख दिया है. Like that sometime they write the rate also, इधर लिख देते हैं. For people those who are using the dial machine, Dialer. हाँ, dial machine, and देखिए this is from Malcolm Ray only. Malcolm Ray का मतलब न्यूमेरिकल मैथमेटिका में ही है ये नंबर. And when you refer this, you will come to know this number, this will be the rate. थोड़ा सा चेंज हो सकता है, उसके लिए ज्यादा ये नहीं होना, बिकॉज इवन दो, हाँ, अभी एक बात करना है कि 1 2 3 4 4, अब 4 में देखे, 4 इज लाइक दिस, इधर से इधर तक 4 है. 4 का एक एंड में एक लाइन आता है, 4 का अदर एंड में और एक लाइन आता है, फिर भी 4 है वो. मतलब कितना इनएक्यूरेट है वो. Base 10 is not so accurate because we can't represent, because only we are dividing one whole circle into only 10 divisions. So we are not able to perfectly align. इसीलिए वो फिजिकल लेवल बोल दिया. हाँ, आप कहाँ रहते हैं, बोला जी इंडिया में. जस्ट लाइक दैट इज द बेस 10. So shall we take another example, or it is enough? Another we can do, sir. Yes, sir, we will do that. क्योंकि we 44 तो वही रहेगा. We will remove the card गया. We will import. Yes, इसको हम नीचे भेजेंगे. इस नीचे भेज करके इसको सेंटर में अलाइन कर देंगे. So this is 3, 4, Yes. 5, 6. So you can take a 2 also, 2 3 4 5. 2 3 4 5. Sorry, ये 1 है ना. 1 2 3 3, 4 4, 5 5, 6. 6. 3 4 5 6. एंड ये वाला नंबर क्या है? कैसे? 33 34 35 36 37 38 39. Means this, what is the base 44 number of this? Is 1 2, मतलब 2 3 4 5 and कितना था? 33 34 35 36 37 38 39. That's it. Yes, मजा आया सर. This is what is the secret of. I already, मेरा और भी एक कार्ड ये है, क्या बोलते हैं, वीडियो, secrets of card. In that also I have explained like this only. But इतना ज्यादा डिटेल में नहीं गया, क्योंकि I have shown installing the Inkscape also, how to make the division also. तो डिवीजन में कौन सा आया ये देखने का है. ठीक है. नाउ सर हाँ सर सर. थोड़ा सा पूछ सकते हैं सर, जैसे ये जो रेट है ना, तो कोई एक सर्कल को लिया और उसको एनर्जीज को अपने डिवीजन किया, तो एग्जैक्टली क्या है, इस कार्ड इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में अपने एनर्जी को छोड़ रहा है. हाँ. हो गया.
Yeah. Correct. How to convert into the ये तो कार्ड का लैंग्वेज है। ये कार्ड का लैंग्वेज से इसको डायल का लैंग्वेज में कैसे चेंज करना। इफ यू वांट टू गेट द सेम रिजल्ट विथ द डायल मशीन, व्हाट नंबर यू शुड डायल, उसके लिए है ये। But if I want to make a new card, I have to check the numeromathematica and I have to get the number from there and then I have to draw it like this. Is it? Yes, perfect. Okay, sir. And I can provide you the blank cards like this. मैं सर्कल वाला मैं ब्लैंक कार्ड दे दूंगा। Okay, वो sir. ये ब्लैंक मस्त कार्ड इधर लोड करके नाम ये लिखिए ऊपर। लिखने के बाद you can mark inside this circle. सर वो सर्कल को कैसे मार्क करे? वो ऐसे लंबा डंडी खींच के उसके ऊपर देना है? यस करेक्ट है। इसमें देखिए जैसे देर आर टू मेथड। अभी इसका हाँ वो भी हम बता देंगे आपको। we'll take that also. I will try to make कार्ड। मैडम आपके पास ब्लैंक कार्ड है तो भेजिए। है? अच्छा हाँ है। भेजिए आपके पास तो सब कुछ है। थैंक यू सर, आप ही दिए सब। एक ब्लैंक कार्ड भेजिए। वी विल मेक वन। भेज। एंड सर जी आप एक रेट चुन लो, क्या किसका कार्ड बनाना है। आप हमारा न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स से कोई भी है, आप एक ये चुन लीजिए। सर आपके उस पर डालू ना वापस? अभी डाल लेते ना, उसी में डालिए। ठीक है, डाल दिया। मिल गया सर? मिल जाएगा। यस। 7 rings. सर ये तो अच्छा मैथमेटिक्स। व्हाट इज दैट मैथमेटिक्स? हो गया ना सर। ये अभी देखिए आपको पूरा हम अब बताएंगे। नाउ डिलीट हो गया वो। अभी वी गॉट अ ब्लैंक कार्ड हियर। सर जी मैं एक नंबर दूं? हाँ दीजिए। एक लेकिन सिर्फ देने से नहीं चलता, उसके साथ साथ ओपन करके बेस 44 का नंबर भी बोलना है। अयो अच्छा ठीक है। हाँ आसान नहीं है। देखिए सर, ये देखिए ये हमने लिया ये कार्ड। ओके, ये कार्ड हमने लिया, इसको हम इधर से इधर रख लेते। ओके, अभी ये देखिए कि दिस कार्ड शुड बी ऑफ द डायमेंशन 65 mm by 65 mm by 75 mm। नो प्रॉब्लम। ये क्या है ना कि ये 3 साइज इसको कैसे करना है, रीसाइज कैसे करना है, मैं सर जी आपको पता था। बड़ा पिक्चर दिखेगा उसको, लेकिन कैसे आफ्टर मेकिंग दिस हाउ यू कैन रीसाइज इट। यू कैन यूज द सेम सॉफ्टवेयर। पहले इसको लॉक कर दीजिए। लॉक करने से क्या होता है,
ये डायमेंशन मतलब मेजरमेंट बिगड़ेगा नहीं. आफ्टर दिस यू चेंज वन. विड्थ क्या है? 63 कर लीजिए. 63. 63. एंटर. हो गया. यू गॉट इट. हम्म सर जी इसका ड्यूम क्या? बेस 10, बेस 44 एंड 336 ड्यूम. ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट. हमने अभी इसका लेके आ गया. क्या है? दिस कार्ड इज फिट. मीन दिस कार्ड विल गो इनटू आवर कार्ड स्लॉट. मैं और आपको बार बार बोल रहा हूं, दिस इज एडवांस लेवल क्लास, सो डोंट गेट वरी. बट ये आपको ये पता लगाने के लिए हम बता रहे हैं कि कार्ड होता क्या है, कार्ड में नंबर कैसे करना है, एंड हाउ यू कैन मेक योर ओन कार्ड. ठीक है. सो उसको someone who will be joining the research level radionic class, they can उसके लिए रिजर्व रख लीजिए. डोंट जी वरी. हरमीत मैडम, डोंट. हाँ जी. नो हाँ नो जी. डाउट्स. ओके. हाँ सर. ओके. नाउ हाँ जी. किधर गया वो? हमने बहुत वी हैव डिलीटेड. हमको सीधा करेंगे अभी. वी डोंट वांट एनी बेस 10 चाहिए नहीं हमको. वी विल मेक ओके. डायरेक्टली बेस 44 ओनली नाउ. है ओके. ना? ओके. ये ले लिया. ये मोटा हो गया, इसको पतला कर देते हैं. इसको थोड़ा ओपैक है, इसको सीधा करते हैं थोड़ा स्लाइटली. और भी सम टाइम आपको दोनों जरूरत पड़ता है. बेस 10 को भी जरूरत पड़ता है, ये भी जरूरत पड़ता है. ठीक है. 1 मिनट आई विल डेमो माई. मेरा जो है ना चलो 336 बनाएगा तो फिर तो बहुत बड़े लिखना पड़ेगा. 336 कार्ड होते नहीं है. दे आर डायरेक्टली डिराइव्ड. सो अच्छा. इसीलिए मैं बोला बेस 336 दे आर नॉट. 1 मिनट. मैं और एक कंप्यूटर में देख रहा हूं. आई विल शो यू. और भी एक मैं आपको दिखाऊंगा. मतलब इसको मैंने आसान कर दिया है. कार्ड मेकिंग आई हैव डन इट वेरी इजी. अदरवाइज यू कैन डू लाइक दिस. ओके. आई एम एडिंग दैट. एक और भी एक. सो वी विल मेक इट सम मोर थिन. थिन करेंगे. ओके. थिन किया. देन ये देखिए वेदर दिस इज परफेक्टली परफेक्ट और नॉट. यस, करेक्ट है. सो बोथ आर हाइट एंड विड्थ बिल्कुल सेम होना चाहिए. अदरवाइज योर मार्किंग विल नॉट बी करेक्ट. सो इसको सेट सेट दैट. अभी उसको यस adjusted. So now मतलब इतना मुश्किल लगता है बनाना. ये जो है ना, इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट, बट बन सकता है. आपको ये कहना कि हाउ वी कैन मेक इट. ओके. सो वी हैव
अप्रोक्सीमेटली अलाइन किया, लेकिन और भी एक्यूरेटली हम अलाइन कर सकते हैं इसको। यस, ओके, ऑलमोस्ट ये हो गया। देन हाँ, कैन एनीबडी टेल मी द नंबर? यस यस, नंबर इज, आपको कौन सा बेस 44 का चाहिए सर जी? 44 भी चाहिए, बेस 10। यू हैव टू टेल ठीक है, वन नंबर 44 का, वन नंबर बेस 10 का बोलना है। हाँ, बेस 10 का है 889। नो नो, ऐसा नहीं है। हाँ, फर्स्ट नंबर क्या है बेस 44 का? मतलब बेस 336 का बोलूं क्या? बेस 44 का 889 है सर जी, बेस 10 का। मैं आपके क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? यू ओनली टेल मी द फर्स्ट नंबर ऑफ बेस 44। हाँ, सर लिख बेस, लीजिए 10 का बेस का लिख लीजिए, उसके बेस बाद 10 इज 44 का लिख लीजिए। 889। नहीं नहीं, करेक्ट, इधर लिख देते हैं। हाँ दैट विल मोर इजी। हाँ, बेस हाँ, इज बोलिए। 889। हाँ, 889 8 889। दिस इज बेस 10। Yes, Okay, now and the base base 44. 31, 34, 36, 31। 34, 36. 34, 36. ठीक ठीक है। है, वेरी गुड। सो नाउ ये देखिए 8 8 मतलब इस एरिया में आएगा वो। इट विल कम इनटू दिस एरिया। व्हाट विल डू? 31, ये 33 है। 33 इधर आता है। सो ये देखिए इधर, दिस इज 33, दिस इज 32, दिस इज 31। यस, So you have while to draw a mark there. हाँ, वी हैव टू मार्क हियर। तो किधर है मार्किंग वाला? सो हो गया ना, ये 33, 33, 32, 32, 31. 31। एस्केप दबाना पड़ेगा। एस्केप दबाना पड़ेगा, यस करेक्ट। देखते हैं इधर, पेंसिल टूल ये है ना, पेंसिल टूल ये चाहिए। हो गया, ओके ओके, नेक्स्ट। सो इसको कॉपी कर लीजिए, उसी जगह में पेस्ट कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं आता, एंगल सही नहीं बढ़ता उसका। ये 33 है, 34 है। लेकिन क्या करना चाहिए पता है? यू हैव टू टेक द पेंडुलम, यू हैव टू टेक द पेंडुलम एंड आपको इसको एनलार्ज कर लीजिए। एंड एनलार्ज करने के बाद ये आपका जो स्क्रीन को फ्लैट करना है, मतलब फ्लैट करने के बाद ये पेंडुलम, कैन यू सी माय पेंडुलम? यस सर। हाँ, ये पेंडुलम उस सेक्टर में चलाना है। उस सेक्टर में चलाने के बाद उस सेक्टर में कौन से जगह में ये पेंडुलम जाएगा, विद इन दैट सेक्टर। मतलब यहाँ योर है ना 34 में है, 34 में मैं पेंडुलम ऐसा ऑपरेट करूंगा। ये कौन सी जगह में ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, उस जगह से सपोज इधर आप ऑसिलेट हो रहा है। नहीं, पेंडुलम की जो जो पेंडुलम की जो मेन पॉइंट इधर रहेगा, जहां पे गोल सर्कल है, नहीं, और इसको ये बड़ा इसी करेंगे, बड़ा करके उसी का 20 की रिमार्केशन निकलेंगे। ओनली दैट 34 सेक्टर में ढूंढेंगे, ओनली 34 सेक्टर में ढूंढेंगे। तो 34 सेक्टर को बड़ा करेंगे, एनलार्ज करेंगे, करके करेक्ट, उधर की एग्जैक्टली एनर्जीज। हाँ तो करेक्ट। उसको उसको क्या बोलेंगे जी? इसकी बेस 30, इसकी 44 बेस की लोकेशन बताओ, क्या बोलना क्या है पेंडुलम को? या पेंडुलम को ये बोलना है कि यस, इस एनर्जी का ये 8.18 डिग्री होता है। वो 8.18 डिग्री है, एक सेक्टर 8.18 डिग्री का होता है। कैसे होता है? व्हेन यू डिवाइड
हाँ 360 into 44 तो division. 44 है 8.18 डिग्री. हाँ, वहाँ What is the 8.18. 8.18 degree हाँ of this particular energy? हाँ, 8.18 डिग्री का इस पर्टिकुलर एनर्जी का कहाँ मार्किंग करना है? You have to ask that, and wherever within that sector, wherever your pendulum goes, you have to mark there. Okay. Okay, what is the next number? So the 8 next 8 हो number गया ना, was डबल 34, है. 31, 34, and then another number was there. That is इधर ही, ए, नहीं नहीं 31 34 36 था ना, पर वो 36. 889 हो गया क्या? 889. उसका जरूरत नहीं 889 की. अच्छा, ओके. 34 हो गया, सो 31 हो गया, 31 34 34 36. 36. आपका हाँ, स्क्रीन को थोड़ा अगर बड़ा कर लेंगे तो हाँ, सही रहेगा सर. हो गया. यस. अभी इसको थोड़ा छोटा करेंगे ना, इसमें क्या है, इसी को. बहुत बड़ा हो गया. You can do your canvas to bigger. Then everything will come to the bigger. ठीक है. ये नाउ ये 33 है, 34 हो गया, 35 36. हम ये 36 के अंदर हम फिर से पेंडुलम मूव करेंगे. पेंडुलम मूव करेंगे और पता लगाएंगे कि किधर ये है ना, ये 36 इधर आएगा. हम आई एम ऑपरेटिंग द पेंडुलम. पेंडुलम देखेंगे. अब मैं एक हाथ से पेंडुलम देख रहा हूं और एक हाथ से ये देख रहा हूं. एक जहां भी वो मूव होगा. ओके, यस, देयर इज अ चेंज. आई सॉ दैट सडन चेंज इसका. सो यस, इधर से नहीं नहीं, This is not the liner. लाइन. Yeah. यस, ये हरमीत मैडम, ये किसका था ये है सर जी तिब्बतन का सेंट ईटर्स गंधर्व. हाँ, Sen eater सर जी गंधर्व आप ही पूरे तिब्बतियन. बना के दो. हाँ, तिब्बतियन के. क्या ईटर? सर Scent ईटर. सेंट eater, सेंट scent, सेंट. fragrant eater. हाँ, ईटर्स गंधर्व. ई एट TERS EATERS गंधर्व. वाह मस्त. सर जी और उसका पूरे आप ही तिब्बतियन बना भी के लिख दे दो ना लीजिएगा ब्रैकेट तिब्बतन में. के. क्या है? हाँ, इसको नंबर ये पूरा इसको ऐसा करके. कार्ड नंबर 3. ठीक है, हाँ. उल्टा हो गया. उल्टा कैसे हो गया? अच्छा. होता है, उल्टा सीधा होता है, इसमें सब कुछ होता है. सीधा हो गया ना. तो अब क्या करना हाँ, चाहिए आपको? ये कार्ड ऊपर नंबर इसको 3 हटा है सर देना जी है. ये. इसको हटा देना है, डिलीट कर देना. सो यू गॉट अ. मामा हाँ, ऊपर घर चाबी दाओ. मस्त. सर जी एक और दूं? नहीं, बहुत है. अभी आपको मेरा मेरा अभी मेरा व्यापार करना है मेरे को. आई विल शो यू. क्योंकि पता है ना कि एवरीथिंग इतना मुश्किल है, इसको कैसे आसान हम कैसे बनाए. हाँ एक्चुअली, हाँ, है ना. इसको आसान सर जी बना दे मशीन. थोड़ा सा. हाँ मशीन दे दो, ठीक है, बात खत्म हो जाती. हाँ, चलो, ठीक है. नाउ यू गॉट इट. वी विल मेक अनदर कार्ड. हाँ दियो, नंबर लेकिन दियो. बहुत आसान करेंगे, आसान वाला करेंगे. ठीक है, आसान वाला दियो. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. मैं अपना डाउनलोड, कहाँ डाउनलोड? नहीं, दियो. किंगस्टन. किंगस्टन में यस, रेट डिटेक्टर आ गया.
यस, कार्ड मेकर। देखिए, दिस अ कार्ड मेकर सॉफ्टवेयर। हम्म मतलब हाउ टू, दिस इज नॉट यूजफुल फॉर चेकिंग द रेट्स। चेकिंग रेट के लिए यूजफुल नहीं है, बट यू कैन मेक द कार्ड्स इजीली। हम्म कैन यू सी द नंबर्स? इसके अंदर नंबर है। यस हाँ सर, मस्त है, ये मस्त है ना सर जी, ये देंगे तो बिल्कुल इजी हो मस्त है। जाएगा। ये मस्त फिट है, फट लेकिन इसका लगेगा वो फ्री है। क्या है। है? ये इसको पैसा लगेगा, वो पहले वाला जो है ना वो फ्री है। आप खुद अच्छा बनाने में ना उसमें फ्री है। मैं सब कुछ फ्री है। मतलब फ्री सॉफ्टवेयर है वो, सब कुछ वो ये है। बट इसको अच्छा, हम्म, ये चार्जेबल है। चार्जेबल है, लेकिन ये हाँ, इसका कैसे बनाना, देखिए इतना बड़ा, और भी बड़ा कर हम्म सकते हैं। अब अभी बताए, अभी ईटर हम्म का क्या नंबर था? सर ये 31 था। 34 and 36 34, and 36। 36। 36 हो गया। हाँ सर। हाँ इतना हो सही। गया। सर हमने जी ये दे दो प्लीज, जल्दी हो जल्दी गया। दे दो प्लीज। ठीक है सर, ये EXE शेयर कर दीजिए, आपको रख के क्या फायदा है। नहीं नहीं। शेयर करेंगे ना सर, शेयर। ये हाँ बना हाँ, है शेयर करने के लिए। यस यस। ये देखिए, ये बन गया। हाँ, कहाँ चला गया वो? यस, ये देखिए ये बन गया ना। राधा और राधा राधा कैसे बन गया राधा। कार्ड? मस्त और बन इधर गया। यस, ईटिंग। ईटिंग। ना ना, सेंट ईटर्स, नॉट ईटिंग, यस, स्पेलिंग सेंट बोलिए, ईटर्स। उसका स्पेलिंग कहाँ आता है? एस सेंट, सी प्रेग्नेंट। ई एन हाँ, टी एस सी ये सी ई ई एन टी, टी, सेंट। सेंट ईटर्स, EATERS, हम्म गंधर्व, GANDARV। हो गया। आप इसका यप, पोटेंसी क्या रखना है? अगर आप इसको बोलिए। अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, 10 मेरा 10। श्री चिदम्बर, मेरा भगवान का नाम है श्री। श्री चिदम्बरम, बना दिया। चिदम्बर मंत्र। पोटेंसी सर जी 10। पोटेंसी देखिए, इधर लिखना है, मैं लिख देता हम्म हूँ। हम्म। पोटेंसी कितना? 200। हाँ, 10 10 एम। रखना है, टू टू। 10 एम, हाँ 10 10, हाँ 10 एम एम। लिखा। तो इसको हमने, यस। इसको कर दिया। हो गया। हाँ सर। यप, अभी और एक कार्ड बनाए। यस यस, मैं नंबर देती हूँ। हाँ, देखिए क्या करना चाहिए अभी। इधर हमने साइड में कट हम्म किया। वी हैव टू मेक इट हाँ हाँ जूम आउट। ये कर दिया। ओके, ये टेल में द हम्म, सेकंड, सेकंड ये बताइए। हाँ ये सर जी ये डालें, ये इविल कर्स घोस्ट। हाँ इविल, हाँ EVIL, कर्स, CURSE, कर्स, हाँ, घोस्ट, GHOSTS। यस, ठीक है। नंबर बोलो। बोला, एक मिनट मिनट, एक मिनट। हम्म, कॉपी पेस्ट कर लीजिए श्री चिदम्बरम। नहीं ये तो डाल ही देंगे अपन को अभी, सर जी तो डाल ही देंगे अभी, ओके, छोटे बड़ा रहे। हाँ नाउ हाँ नाउ अभी बताइए हाँ इसको। और मार्किंग चाहिए ना, तो हम हाँ। हाँ। प्लेन जगह में जा करके प्ले करके दबाना है, प्ले। अच्छा, जब प्ले दबा देंगे तो फिर से ए नंबर्स आ जाएंगे। ओह ग्रेट। नाउ यस। आप बताइए, इसमें बहुत मुश्किल रहता है। मुश्किल यह रहता हाँ है कि आई विल टेल यू वन, वन मजा है इसमें। वन मजा हाँ ये है, देखिए। हम्म अगर देखिए, ये 4.5 के अंदर ही आपका जो है ना फर्स्ट खत्म हो जाता है। हम्म। कैसे? अगर अगर हाउ? कोई
ये देखिए ये रेड लाइन है, आपको दिखाई दे रहा है। आई एम इंटेंशनली हैव पुट लो, इधर देख रहा है आपको रेड लाइन, रेड, यस रेड लाइन दिख रहा है यस, इधर। हाँ ये हाँ दिखा। 4.5 को 1 5, का हाँ। जो सेक्टर है खत्म हो जाता है। अगर हम्म। समझिए, अगर कोई कोई जो लाइन है इधर आया, इधर आया, हम्म। तो ये आपका बेस्ट एंड रेट क्या होगा? सर ये तो पहले वाला के अंदर माना जाएगा, 1 के अंदर। एक के अंदर माना जाएगा, राइट। हाँ। हम्म। अभी देखिए आपने गलत किया, तो इसको मिटाने के लिए कैसा चेक करना चाहिए, उसके ऊपर और एक बार दबाना है, बस हो जाए, चला जाएगा। अच्छा। और अभी अभी इधर लाइन है, तो ये हम्म। क्या नंबर होगा? बेस 44 नंबर क्या होगा? बेस बेस 10 का नंबर क्या होगा? सर 44 में इसको आपको तो ये 5 और 6 का बीच में आ गया। नहीं नहीं नहीं, 5 और 6 नहीं है, ये 5 है, 5 फिफ्थ सेक्टर है, ये फिफ्थ सेक्टर है, तो 5 इधर कहीं भी लाइन आया तो 5 होगा वो। हाँ, बट बेस 10 का नंबर क्या होगा? बेस 10 का नंबर ये सर आपको 6 ही होएगा ना सर जी? नहीं नहीं नहीं, बेस 10 में 2 मानेगा ना 1 मानेगा, यही कह रहा है टू सर। टू 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 टू, यू आर वेरी करेक्ट। हाँ, एक अच्छा। देखिए, ये रेड लाइन है। ये क्रॉस करके आ गया तो 2 2 गिनना पड़ेगा बस। हाँ, 2 गिनना पड़ेगा, इसीलिए सो इट इज सो ओके एक्यूरेट। ओके। इतना एक्यूरेट है कि इसीलिए कार्ड बनाना, हम्म। वैसे कार्ड बनाना मुश्किल है, बट अच्छी तरह से एक बार आपने मास्क कर दिया तो हो सकता है। तो इस तरह से अभी देखिए, और भी एक इधर भी ऐसे ही आएगा। कहाँ पे? ये देखिए ना, इधर आया, ये इधर भी देखिए 2 के पास आ गया ना? 9। कभी बहुत बार जब हम कार्ड बनाने के टाइम में, ಸರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳತೀನಿ, ಅಮ್ಮನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. हाँ हाँ, इधर ओके, ये 9 हाँ वाला देखिए इधर, हाँ 9 वाला देख रहे हैं, 9 वाला हाँ दिख हाँ, गया। एक रेड लाइन इधर है। अगर समझे इधर लाइन आया तो क्या होगा? हम्म। दिस वो व्हाट टू कंसीडर, बिकॉज सर रेड लाइन के आगे है। व्हेन हाँ इट इज तो टू, रेड लाइन के रेड आगे टू लाइन है के से आगे है तो उसको तो तो हम 2 ही कंसिडर करेंगे। किसको? नहीं, 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 इसको तो टू 3 करना टू पड़ेगा। हाँ 2 से हाँ, ज्यादा। 3 करना पड़ेगा। हाँ इसीलिए 3 करना मैं पड़ेगा। बार रेड लाइन के बार, उधर है तो सब उधर वाला में जाएगा। तो इधर है 2 मतलब रहेगा। रेड लाइन करेक्ट करेक्ट, क्रॉस अब किया। देखिए इसको मैंने मिटा दिया। समझे, इधर आया, इधर सर आए तो क्या इसको होगा? आपको 2 2 2 2। यस, 2। लेकिन बेस 44 का नंबर क्या होगा? तब बेस 44 का नंबर आपका ये 9 ही 9। होगा। 9 क्यों होगा? हम्म। क्योंकि 9 इधर से इधर तक। 9, हाँ, ओके। इधर से इधर तक 9 है, हम्म। क्योंकि इसके अंदर 8.18 डिग्रीज का एक 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 डिग्रीज का रात एक को तो इसी का ही सपना आएंगे सर। हाँ। रात को तो आपका ये कैलकुलेशन का ही सपना आएंगे। यस, यू आर राइट। आई विल सी द ड्रीम ऑफ दिस इन नाइट। यस यस सर, यस। मतलब ऐसा ही होता है। और अभी क्या है ना कि 9 सेक्टर के अंदर आपने ये समझे, ये लाइन इधर आया। अगर आपके, और एक मैं बोलता हूं, आपके रेट लिस्ट के अंदर आप देखना, दोनों देखना पड़ेगा, इसलिए मैं बोला था यू हैव टू सी बेस 44 एंड बेस 10 आल्सो। अगर हम्म। बेस 44 का रेट 9 लिखा हुआ है हम्म। एंड बेस 10 का रेट 2 है, तो हमको इस हम्म। सेक्टर के अंदर मार्किंग करना है। अच्छा। बेस 10 का रेट 2 है, बेस हम्म। 44 का 9 है, तो इतना सेक्टर के अंदर आपको मार्किंग करना है। हाँ ओके। हाँ, वो कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो, तो इसीलिए बेस 10 के साथ करेक्ट बेस 44 की सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा। करेक्ट, इधर देखिए, लाइक दैट ओनली, इधर भी ऐसे होता है। 14 हम्म। में देखिए, एक लाइन 13 के यहां पास। है, हम्म। यहां अगर आपने मार्किंग हुआ तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज 3 3, एंड यस। बेस 44 रेट इज 14। 14। Base 44 it is 14,
base 44 rate is 14, but Hmm. base 10 rate is 3. ये बहुत जबरदस्त चीज है. आई थिंक सो दिस वाज अ वेरी ग्रेट सीक्रेट अबाउट द कार्ड. मैं पहले भी Yes. बोला है, लेकिन मैं ऐसा डेमो नहीं किया. अभी देखिए 18 का क्या है. Hmm. अगर समझे कोई यहां लाइन आया तो दैट इज बेस 44 नंबर का 44 इज 18. 17 18 17 एंड बेस 4 बेस 10 का नंबर है. ओहो, yes. ये म्यूट करिए. म्यूट करेंगे. ठीक है, हाँ, चलो. एक और है. ठीक है. सो यहां लाइन आया तो ये 4 होगा. ये रेड लाइन के इस तरफ अगर लाइन आया तो ये 5 होगा. हाँ, दिस इज द फिफ्थ सेक्टर, पांचवा. fifth. हाँ, तो अभी हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे, आपको समझ में आ. देखिए हाँ, एकदम फैल गया था. फिफ्थ हाँ, फिफ्थ एंगल यहां से यहां तक स्टार्ट होगा. दिस यू हैव टू सी व्हेन मेकिंग द कार्ड. में कार्ड बनाने के टाइम में आपको ये दोनों देखना है. सर कौन आप सा है ना, आप ही देखना बना है? देंगे, बस हो गई, इतना ज्यादा हाँ, क्या करना है. ठीक है. आप ही बना के दे दो. दे दिया ना, मैं आपने बना के दे दिया. ठीक है. नाउ ओके, नाउ यू टेल मी क्या मार्किंग करना है. आपका कौन सा था ये? सर किसी भी पेपर में अगर प्रिंट ले तो काम करेगा ना? करेगा, लेकिन लेजर प्रिंट होना चाहिए. लेजर प्रिंट मीन्स? लेजर प्रिंट मीन्स ये देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर. वन इज अच्छा, इंकजेट. लेजर प्रिंटर, ओके, आई लेजर. अंडरस्टैंड. हाँ, लेजर प्रिंट से होना चाहिए. लेजर प्रिंटर, लेजर का जो प्रिंटर है ना, प्रिंटर, वो है मैग्नेटिक इंक रहता है उसका. हाँ हाँ. इसीलिए ओके वी हैव. ओके, इविल कर्स घोस्ट का नंबर बताइए मैडम जी. 788 है सर जी, बेस हाँ? 10. 788. अब देखिए 88. 7 है. ओके, 7. सर 788 ये इसका है, बेस 10 का बोल रहा है, 7 इधर नहीं आएगा सर. बेस 44 को बोलिए मैडम जी. वो है 29, 31, 33. 29. हाँ, इधर हाँ. इधर देखिए, इधर से फिर से काउंट. ये है. सर नहीं, 29 हाँ, ठीक है. 29 सब सब जगह में खेल रहा है. हाँ, 29 सब जगह में चलेगा. तो हम हाँ. अभी डाउजिंग करेंगे. डाउजिंग करेंगे और 29 में किधर मार्किंग करना हम सोच लेंगे. हमने सर वो 2 डाउजिंग की किया, बराबर डाउजिंग होगा, बस किया, यही पे डाउजिंग होगा सर, किया. और थोड़ा नीचे. ओके, बस. यहाँ आया. ओके, 31 का नंबर बताइए. 31 का बेस 10 रेट क्या है? ये देखिए 1 31 के में, नीचे, 1 के नीचे. 31 में रेड लाइन जा रहा है. सो अरे भाई ये इसीलिए तो कॉम्प्लिकेटेड है, देखो क्या है. हाँ, 31 7 भी हो सकता है, 31 8 भी हो सकता है. आप बताइए बेस 10 रेट बेस क्या है? 10 में क्या है मैम, देखिए. बेस 10 में 788 है और हाँ. 788. तो हाँ सर जी. 8 लिया है वो लोग, हाँ, 8 लिया, बेस 10 तो में 8 इधर आया. आना, इधर मार्क करना है हमको. ये रेड लाइन की उस तरफ होना चाहिए और 31 के अंदर ही होना चाहिए. नहीं दिस इज वेरी क्रिटिकल. इट्स वेरी गुड एग्जाम्पल. नहीं आपको नहीं नहीं सर, सर यहाँ पे 8 आया है बेस 10 का रेट. ओके, 788. ओके. मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये रेड लाइन से उस तरफ सारा 8 है. सो बट द वैल्यू इज 8 ना, तो फिर हमें 7 के ऊपर 32 में जाना चाहिए ना. ऐसा नहीं है सर, ये 7 जो है ना, मैं बताता हूँ. सर 7 की उसी ये पिंक ता की है ना, 7 की रेस. ये ये तक है, 7 हाँ तक है. ये तक हाँ. तक यहां से यहां तक 7 है, उसके बाद 8 शुरू होता है. सो द बेस 8 का नंबर इज 788. यस, ये 7 आ गया ना, ये 7 सेक्टर में आता है ये. बट व्हाट इज द पहला, सेकंड नंबर, दैट इज 8 ना. मैं बताता हूँ आपको. यही तो मैं बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी ट्रिकी.
ये देखिए पहले आपका 29 जो है सिक्स आ जो गया। ये जो सेक्टर है 7 सेक्टर है 7 का। हाँ 7 का सेक्टर कहाँ खत्म होता है? सर, उसी वो पिंक कलर का, वो ऑरेंज कलर का हाँ, उधर। पिंक कलर के बाद जो है इस पिंक कलर तक सारे 8 है वो। हाँ तो इसीलिए करेक्ट 31 के अंदर ही हमको रेड लाइन क्रॉस करके मार्क करना पड़ेगा। यू गॉट इट और नो सर? आई नहीं विल सर, टेल 31 के अंदर लाइन क्रॉस इसमें करके देखिए, मार। सी यू हैव टू मार्क इन द 31 सेक्टर। 31 सेक्टर किधर है? इधर ये से है। इधर तक है। लेकिन हाँ बेस्ट एंड रेट क्या है? 8 है। 8 है। तो आपको ये रेड लाइन और ये वाला इसके बीच में मार्किंग करना पड़ेगा। हाँ मैं तो वही बोल रहा हूँ। आई करेक्ट ऑल्सो टेलिंग दैट। हाँ, इसीलिए मैंने इधर मार्क किया। हाँ दिस इज अभी देखिए यहां से ये 31 सेक्टर के अंदर ही रेड लाइन से थोड़ा सा इधर मैंने मार्क कर दिया, तो दैट बिकम 31। ये देखिए 31 है ये। हम्म 31, हाँ बट बेस्ड एंड रेट इज 8। तो 8 के सेक्टर में आ गया। हाँ, नेक्स्ट नंबर बताइए अभी। नेक्स्ट नंबर क्या है बेस 788 44 का? है, हो गया। नहीं, एक बेस मिनट, 44 बेस का और एक 44 नंबर का क्या है? 29, 31, 33। 33। 33। उसे ये सीधे देखिए इस डाल देना। 33 के इसमें हमने फिर से यू सी पेंडुलम। while making card anywhere you make it will give the same effect। ये 8.18 डिग्री के अंदर आप कहीं भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन फिर भी टू बी मोर एक्यूरेट हम डाउजिंग करेंगे, डाउजिंग करेंगे, डाउजिंग तो करेंगे, दोनों डाउजिंग 3 के बीच करेंगे। में। हाँ हाँ, तो ये तो, 30 इतना, ये इतने इसके बीच तो में डबल 3 का बीच में आ रहा है। हाँ इधर आ रहा है। लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। हाँ ठीक है, इधर हम मार्क कर देंगे। सो हो गया समझिए। बन गया एकदम, बहुत बढ़िया। मजा आ गया। आ गया ना सर? दिस इज व्हाट अभी आपको आपको सबको ये जो प्ले प्ले कर दे तो ये साफ दिख रहा है। और हम इसको क्या करेंगे? 100% कर देंगे। 100% मतलब एवरीथिंग यू विल शो। गो गो टू द फाइल, प्रिंट, प्रिंट जा करके हम प्रिंट में पीडीएफ करके करेंगे। यस, माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ। देन प्रेफरेंस है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट के बाद एडवांस्ड, एडवांस के बाद जो लीगल साइज सिलेक्ट करना है, ओके प्रेस करना है। पीडीएफ बनाएगा। ओके करेंगे और कहीं पे इसको कहाँ डाल देंगे? डेस्कटॉप में डाल देंगे आपको। भेजने के लिए। हाँ, आपको और भी है ना, यस आपको इसके साथ साथ ब्लैंक भी मिल जाएगा। मिल जाएगा। हाँ सर, भेज दीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, यस इधर है सर ये जी, एक नहीं नहीं, कलर प्रिंट का नहीं भी बता करेंगे, दीजिए सेंड ना। करेंगे। किधर गया ये? सर नहीं ये नहीं, आपका सेंड तो करके डेस्कटॉप में एक है। कलर वाला भी डेस्कटॉप बने। में है ना? हाँ, हम अभी डेस्कटॉप में जाएंगे। डेस्कटॉप में गए, किधर है? ओके, एग्जाम है सर, पीडीएफ। एग्जाम। इसको राइट क्लिक एग्जाम्पल हो करके गया शेयर एग्जाम। विद वाइवरनिक्स ग्रुप, और मैं हाँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और यस, सेव करता हूँ अपना गूगल ड्राइव में। गुड है, गुड है, गुड है। ये ये डॉक्यूमेंट आ गया, आ गया, आ गया, आ रहा है, रास्ता में है। डेस्कटॉप। एग्जाम, EX एग्जाम पीडीएफ। ओके, ओपन एंड देन सेंड। ठीक है। सो अभी हम इसको हम आपको भेज देंगे। अभी आपको और एक बार आपको मायूस होने नहीं देंगे। अभी हम बताएंगे कि अभी इसको ले लिए थे ना, इसको इधर से हम उसको एग्जाम को ओपन करेंगे। कंप्लीट और डिलीट। फिर हम उसी एग्जाम को एक्सपेरिमेंट करेंगे
ये एक्सपेरिमेंट वास्तव में काम करता है क्या? या सर जी, करेक्ट। सर जी, बनाया सर जी, इसको प्लीज एक कलर का भी बताइए। नहीं, कलर कलर का कोई नहीं हाँ? है इधर। अरे, है ना आपके पास इतने कलर्स? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसको किधर कलर में कर दो। हाँ, देखिए आप, आपको बस पहले हमने जो बताया था हाँ सर, उसका प्रमाण करेंगे अभी। उसका प्रमाण करें। यस। यहाँ से हम चक्र लेंगे और उसको यस, 44 में डिवाइडेड क्या? करेंगे, 44 में डिवाइड करेंगे और 10 में डिवाइड करेंगे, ऑपोसिटी कम कर देंगे। यस, ये देखिए इसके अंदर अभी क्या आपको वो आपका डिवीजन वाला कुछ नहीं दिखेगा, चक्र। ओनली चक्र दिखेगा, क्योंकि हमको तो जब प्रिंट आउट के लिए तो वही चाहिए है ना। हम्म। हाँ, तो इसके लिए अभी अगर आप इसको प्लस प्लस करेंगे तो आप देखिए कितना मस्त चीज आ गया है ना। ये हम्म। कार्ड्स है, आप ये देखिए कार्ड को आप सिलेक्ट करके देखिए। हाँ, आ गया। आ व्हाट गया, इज द हाइट एंड विड्थ? बिल्कुल। पिक्सल में है, इसको आप चेंज करके सेंटीमीटर में, एमएम में देखेंगे तो यस, स्लाइटली विड्थ ये देखिए 66, 79 है। थोड़ा सा इसको ऊपर, ओहो मैंने इधर का लिया है इसलिए ज्यादा दिख रहा है। आई विल डू इट वंस अगेन, वंस अगेन, तो कुछ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये यस। इसको आपको थोड़ा सा, आई थिंक सो, ये 63। हाँ, मैंने लीगल साइज बनाया था ना, इंस्टेड ऑफ दैट आई थिंक सो यू हैव टू मेक अ प्रिंट आउट, आपको A4। A4 साइज में लेंगे तो उसका ये सही बैठ जाएगा। अदरवाइज ऑल्सो आपने ये लॉक किया है, यू यू हैव टू मेक इट ये 73 कर देंगे ना प्रिंट, नहीं, बिकॉज 63, 63। हाँ ओके, नहीं तो इसको 63 करेंगे तो वो हो जाएगा 63, है ना। सो विड्थ 63 हो गया तो ऑटोमेटिकली ये 74 हो गया, फर्स्ट क्लास। दिस इज द कार्ड साइज विदाउट अल्टरिंग द डायमेंशन, मतलब हमने लॉक कर दिया ना इसका, सो दैट इट विल रिमेन सर्कल, सो लाइक दैट इट बिकम्स द रेडी टू टेक द प्रिंट आउट। सर जी, इविल कर्स घोस्ट का पोटेंसी डालिए ना। ना भी नहीं डाल सकते इसके अंदर कोई भी पोटेंसी, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी लिखा हुआ गया। वो जो वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही डालना था, हमने डाला अच्छा। नहीं। अभी जो आप पेन से, जब भी मैंने आपको इस यही चीज आपको अभी ग्रुप में डाल दिया हूं, इसको निकाल अच्छा। करके आप कोई भी ये बना सकते हैं। हमने क्यों बताया कि हाउ टू कन्वर्ट इनटू, आपको पता चल गया ना। यस। एवरीबडी केम टू नो, अदरवाइज आल्सो डोंट वरी, हर एक का ऑलरेडी उसी जगह में बेस 336 से बेस 44 रेट रहता है। बेस अच्छा। 44, you can make the base 44 rate। वैसे इसका भी क्या रहना चाहिए सर जी, पोटेंसी इविल कर्स घोस्ट का? सारा कमांड्स, ये सारा कमांड की जैसा होता 10। है, बेस 10। 10 और बेस 3, आई मीन पोटेंसी 10M। 10M लगा सकते हैं, या CM 200। लगा सकते हैं, सी अच्छा, CM। CM। यस। यस। आई थिंक CM ज्यादा पावरफुल लगता है कभी। पावरफुल, पावर नहीं, पावरफुल सारा आपके माइंड में है। अच्छा। व्हाट, माइंड इज अ मेन थिंग, जो माइंड बोलता है उसको करना है। इसीलिए डाउजिंग क्यों करते हैं? टॉक टू अवर सबकॉन्शियस माइंड, यस। सबकॉन्शियस माइंड को या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करता है, तो उसमें डिसाइड होता है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, फॉर दिस आई वांट टू टेल, ये तो आपका कार्ड का हो गया, बिकॉज आई शेयर्ड दी ब्यूटीफुल कार्ड्स, तो इसलिए इवन इसीलिए मैंने आपको इसे बात किया। नाउ विल क्लोज दिस। सर जी, 336 अगर बनाना है तो कैसे बनाया जाए? हाँ, 336 नहीं 336। बनता है, वो डायरेक्ट डायल किया जाता है, वो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है। हाँ, तो ये वाला मेंटल
फर्स्ट वाला 10 जो था मेंटल है। बेस हाँ 10 ओके is बेस, हाँ बेस base 10 क्या 10 है? is the physical and the अच्छा 44 नो is नो the नो mental. आप वो उसके बारे में सोचो मत, इसीलिए मैं बोला हूं। हाँ हाँ आपको बोला है ओनली एरर की प्रॉब्लम है, डोंट थिंक लाइक दैट, डोंट थिंक ओ, दैट बेस 10 इज फिजिकल लेवल, बेस 44 इज अ मेंटल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल, सोचो मत। ओनली ओके दिस इज द ओनली एक्यूरेसी, ओके एक्यूरेसी का चक्कर है, अच्छा, वो डोंट। हरमीत मैम वाला एग्जाम्पल याद करके रखना पड़ेगा। क्या? हाँ वो इंडिया में है, फिर उसका हैदराबाद में है, और फिर उसकी पूजा रूम घर में का एड्रेस। हाँ ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ 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 जी। सी अभी और एक आज एक और हमने छोड़ा था, वन वीडियो दिखाना था आपको, दैट इज हम्म, अबाउट द श्वेता वाला। इजेक्शन फैक्टर ऑफ द हार्ट, हम्म। इजेक्शन फैक्टर ऑफ द हार्ट, सर जी इजेक्शन। ई डाउजिंग का भी बता दीजिए प्लीज। लोग सारे बच्चों को पढ़ा करके, हम पढ़ के क्या है ना, हमारा दिमाग क्या हो गया है, खराब। मैथमेटिकल हो गया। तो इसीलिए आपका कोई पूछा, हरमीत मैडम आप बोलिए, आपका हार्ट कितना परसेंट काम करना चाहिए, 100% काम करना चाहिए या 50% काम करना चाहिए, कौन सा सही है? 100%। हाँ? 100 सर जी, 100 बाई 50। यही तो यही तो है, इसीलिए मैं उसको वीडियो को चलाना चाहता हूं, क्योंकि अच्छा यूर नॉर्मल हार्ट का स्ट्रेंथ जो है 60% रहता है। अगर समझिए कि बच्चों हम्म का, अगर आपने बच्चों का साथ में काम करके करके आप, अरे 60%, अरे डिस्टिंक्शन भी नहीं लिया, 80% तो हाँ लेना एकदम, ये नहीं चलता। हार्ट के मामले में ऐसा नहीं चलता। सो इसीलिए आई एम जस्ट वांट टू प्ले अच्छा दैट वीडियो, उसमें ओके इजेक्शन फैक्टर के बारे में बताया गया है। सो जस्ट गो थ्रू दैट एंड द करेक्ट रीडिंग ऑफ द हार्ट का इजेक्शन फैक्टर 60% इज नॉर्मल, है ना हरमीत मैडम? हाँ जी ठीक है। हाँ 60% इज नॉर्मल। एटलीस्ट इसलिए 50 के अबव है ना। 50 के अबव ऐसा नहीं चलता, इट इज नॉट लाइक दैट। सो ओके यू जस्ट वॉच दिस, ओके? आपके लिए ये है ये। सो सो दैट हम वी डोंट एक्सपेक्ट एवरीवेयर वी डोंट एक्सपेक्ट 100%। ओके कहाँ गया वो, देखते हैं, यही है कि और In this animation, we want to explain the human nervous system with the help of incredible. एक मिनट। अगर किसी को पसंद आया तो ये कार्ड मेकिंग सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। रेट भी बोल दो सर जी। नहीं, रेट अलग अलग होता है। अच्छा ई पेंडुलम मेरा 10,000 का था, आपने तो सबको ऐसे फ्री में दे दिया। सॉरी सर जी। I'll make everyone pay सर जी, डोंट वरी। नो नो नो, नॉट लाइक हेलो दैट, एवरीवन, अवॉइड करिए। मैं डॉक्टर नगेंद्र थालो। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, और इजेक्शन फ्रैक्शन यदि बहुत कम होने लग जाता है तो पर्सन को क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, और इजेक्शन फ्रैक्शन लो होने के क्या क्या कारण होते हैं, और कैसे इसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट कर सकते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन होता क्या है? हार्ट के जो लोअर चेम्बर्स रहते हैं उनको वेंट्रिकल आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी बोलते हैं, हाँ। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी पंपिंग करते हैं, तो वेंट्रिकल में जितना ब्लड रहता है उस ब्लड में से कितना अमाउंट, कितना फ्रैक्शन वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने में इजेक्ट कर देते हैं या पंप आउट कर देते हैं, उसी को बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। सपोज किसी पर्सन के वेंट्रिकल में 100 ml ब्लड आता है
और जैसे ही वो पंपिंग करता है उसमें से 70 ml इजेक्ट कर देता है, तो उसका इजेक्शन फ्रैक्शन होता है 70%। इजेक्शन फ्रैक्शन को परसेंटेज में मेजर करते हैं। और दूसरा पर्सन है जिसके वेंट्रिकल में भी 100 ml ब्लड है, लेकिन वो वेंट्रिकल 30 ml इजेक्ट कर देता है, तो उसका इजेक्शन फ्रैक्शन हो गया 30%। यहाँ पे इजेक्शन फ्रैक्शन को लेके कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। जैसे ही इको करके पेशेंट्स को बताते हैं कि आपका हार्ट का जो पंपिंग पावर है वो 60% है या 70% है, तो कुछ लोग रहते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं। वो बोलते हैं कि सर ये तो 100% होना चाहिए था, जबकि 60% ही है, 70% ही है, तो ऐसा क्यों हो गया? तो इसका आंसर ये है कि इजेक्शन फ्रैक्शन कभी भी 100% नहीं होता है। तो जो भी एलवी में या लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड रहता है वो मैक्सिमम 70% 80% तक इजेक्ट कर सकता है। टोटल 100 का 100 ml इजेक्ट नहीं कर पाता है। इसलिए इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं है। यदि आपका इजेक्शन फ्रैक्शन 50 से 70 के बीच में आता है तो वो नॉर्मल ही माना जाता है। इजेक्शन फ्रैक्शन को LVEF भी बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन, और शॉर्ट में EF भी बोल देते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन। जबकि RVEF, राइट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन, के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड पंप करती है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, जहाँ पे ब्लड जाके ऑक्सीजनेटेड होता है, उसको ब्लड में से CO2 वॉश आउट होती है, ऑक्सीजन उसमें ऐड की जाती है, यानी ब्लड को प्योर किया जाता है। क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड पंप आउट करती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, जिसके थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, न्यूट्रिशन जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का है उसको मेन वेंट्रिकल बोलते हैं, मेन जो पंपिंग चेम्बर है। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में बात होती है हमेशा। RVEF के बारे में कुछ केसेज में डिस्कस करते हैं। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है? नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन रहता है 50 to 70%, या इसके मिड रेंज मान लेते हैं 60%। यदि इजेक्शन फ्रैक्शन 41 से 49% है, मिड रेंज 45% है, तो उसको बोलते हैं माइल्ड एलवी डिस्फंक्शन। यदि इजेक्शन फ्रैक्शन 31 से लेके 39% है, मिड रेंज 35% है, तो उसको बोलते हैं मॉडरेट एलवी डिस्फंक्शन। यदि इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 30 है तो उसको बोलते हैं सीवियर एलवी डिस्फंक्शन। और यदि इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 20 है तो वेरी सीवियर एलवी डिस्फंक्शन। अब ये नंबर्स हैं, इन नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि सब लोगों को पता नहीं रहता कि किसी को बताया कि आपका EF 30 है, किसी का 70 है, तो लोगों को उनसे नंबर से क्या आइडिया मिलता है उसके बारे में जानते हैं। तो यदि किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन 50 से बिलो जाता है तो पेशेंट को फिर सिम्टम्स चालू हो जाते हैं। तो 41 से 50 के बीच में है तो पेशेंट्स को माइल्ड सिम्टम रहेंगे, या सिम्टम कई बार नहीं भी आते हैं। लेकिन जब वो हैवी एक्सर्शन करता है, कोई बाहरी काम करेगा, तो उसको ज़रूर सिम्टम आएंगे। लेकिन यदि पेशेंट का EF मॉडरेट टू सीवियर डिस्फंक्शन है तो पेशेंट्स को सिम्टम्स चालू हो जाते हैं और वो कंटिन्यू सिम्टम रहते हैं। लो EF के कारण क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? यदि इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो कई तरह के सिम्टम आते हैं। सबसे पहले एक्सर्शन इंटॉलरेंस, यानी वो एक्सरसाइज या कोई हैवी वर्क नहीं कर पाएगा। दूसरा रहता है फैटिक और वीकनेस, यानी पेशेंट पूरे दिन उसको थकान जैसा फील रहेगा और एकदम आलस सा रहेगा। मेंटल कन्फ्यूजन, पर्सन को सांस लेने में दिक्कत रहेगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम रहेगी। और उसका जो एब्डोमन है उसमें ब्लोटिंग रहेगा, एब्डोमल डिस्टेंशन रहेगा, राइट साइड में टेंडरनेस भी रहेगा, पीडल इडीमा रहेगा। और आप हाथ से अंगुली से दबा के भी फील कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है वहाँ पे। पेशेंट की जो भूख है वो कम हो जाती है, एपेटाइट कम हो जाती है। कई बार पेशेंट को पाल्पिटेशन भी रहता है, उसकी हार्ट बीट उसको फील होती रहती है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम आते हैं। नेक वेन डिस्टेंडेड हो जाती है, यानी मोटी मोटी नेक वेन दिखने लग जाती हैं जब बहुत ज़्यादा इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम क्यों आते हैं, इनके पीछे क्या कारण है? तो दो रीजन है जिसके कारण ये सिम्टम आते हैं। पहला अपन डिस्कस करते हैं कि जैसे ही LV धीरे धीरे उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने लगता है तो LV अफेक्टिवली पंपिंग नहीं कर पाती है और वो पंप करके ब्लड को इजेक्ट नहीं कर पाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा,
कि एलवी में जैसे 100 ml ब्लड आ रहा है और वो पंप कर पाती है 30 ml, तो 70 ml एलवी में रह जाता है। नेक्स्ट टाइम फिर 100 ml आता है, 30 ml वो पंप कर पाती है, तो फिर 70 ml उसमें रह जाता है। इस तरह एलवी में क्या ब्लड कलेक्ट होता जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्लड जा नहीं पाता है, तो वो सारा ब्लड वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो एलवी से एलए में जाता है। एलए से पल्मोनरी वेन कनेक्टेड रहती हैं, पल्मोनरी वेन में जाता है वो, और पल्मोनरी वेन कैपिलरीज और लंग्स से कनेक्टेड रहती हैं, तो सारा जो प्रेशर है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है और लंग में कंजेशन हो जाता है, एल्यूलाई में फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, तो एल्यूलाई में पूरा ऑक्सीजन और गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, उसको डिस्निया होने लग जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे और ईएफ कम होता जाता है। देखिए, he is telling about dyspnea. Dyspnea, we have a one vibronic mixture NM dyspnea. It is already there. So uska I will just tell you. Dyspnea, their spelling is different. Okay, so dyspnoia ऐसा लगता है वो. So that is only dyspnea. DYSPNOE, dyspnea. Yeah, dyspnoia. This is what you can use for the this of a low LVF. And one more beautiful the combination is OM7. So exertional, if you do exertion, you get a breathlessness is the first symptom. So you have to give OM7, and I have seen OM7 doing excellent result. Okay, and this happened with my father only. He was having only less than 20% LVEF. So he was told anytime anything can happen. Last 2 years back only, we were with all medication we were pulling on. So the time has come and he's away. So I remembered. So this is a very important one. What are the symptoms we get? So, and what are the remedies we have with us in a vibronic support? So anybody after 50 years he has already crossed, don't forget to add the OM7 heart. Okay, we'll see what ये again. लंग प्रेशर है वो भी फिर बैकवर्ड शिफ्ट होता जाता है, जैसे राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम में शिफ्ट हो जाता है वो, फिर वहाँ से जैसे सुपीरियर वेना केवा आती है और इन्फीरियर वेना केवा है, उधर भी प्रेशर बढ़ जाता है। यदि सुपीरियर वेना केवा का प्रेशर बढ़ जाएगा तो यहाँ गर्दन के पास में आपको मोटी नेक वेन है वो काफ़ी मोटी और डायलेटेड दिखाई देंगी। यदि आईवीसी में प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका इंटेस्टाइन है वो भी कंजेस्टेड हो जाएगी, इडिमेटस हो जाएगी और आपके पूरी पेडल इडिमा हो जाएगी। इस कारण से आपको सांस लेने में दिक्कत रहेगी, आपका एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा, आपकी लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, क्योंकि इंटेस्टाइनल है जो कंजेस्टेड है, भूख नहीं लगेगी आपको। दूसरा ये है कि जब सारा ब्लड और फोर्स बैकवर्ड शिफ्ट हो गया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्लड बहुत कम जाता है, जिसके कारण लो कार्डियक आउटपुट के साइन आने लग जाते हैं, सिम्टम आने लग जाते हैं। तो लो कार्डियक आउटपुट के सिम्टम रहते हैं जिसमें एक्सेशनल इंटॉलरेंस है, फैटिग है, टायर्डनेस है, कन्फ्यूजन है, तो ये सारे सिम्टम आते हैं जो लो कार्डियक आउटपुट के कारण होते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने के क्या क्या कॉज रहते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कारण है कार्डियोमायोपैथी, यानी कार्डियोमायोपैथी का मतलब है कार्डियो मीन्स हार्ट और मायोपैथी मानी मसल्स की डिजीज। यदि हार्ट की जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाएंगी या थिक हो जाएंगी और डायलेट हो जाएंगी तो प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पाती हैं, तो उस कंडीशन में ईएफ कम हो जाता है। दूसरी कंडीशन होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है उन आर्टरीज को कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, और यदि एक या एक से ज़्यादा दो आर्टरीज में ब्लॉक हो जाते हैं, हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन या पंपिंग पावर कम हो जाता है। तीसरा कारण रहता है एक्यूट हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जैसे ही हार्ट अटैक होएगा सडन हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी और उस हार्ट का वो वाला पार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट कॉज होता है कंजेनाइटल और एक्वायर्ड वाल्वुलर लीजन्स। यदि हार्ट के जो वाल हैं
वुंड में या तो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाते या प्रॉपर ओपन नहीं हो पाते, दोनों ही कंडीशन में धीरे धीरे आगे चल के इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर का मतलब हुआ कि हार्ट प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पाता है, उसकी जो पंपिंग करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो उसमें भी इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा। इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू के आधार पर हार्ट फेल्यूर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक रहता है हार्ट फेल्यूर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी उसमें पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है, यानी लेस देन 40 हो जाएगा। यदि लेस देन 40% इजेक्शन फ्रैक्शन है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेल्यूर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। उसमें होता क्या है, हार्ट की जो मसल्स रहती हैं वो थिन हो जाती हैं, डायलेट होने लग जाती हैं, तो हार्ट की जो पंपिंग करने की कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं हार्ट फेल्यूर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। दूसरी कंडीशन रहती है जिसमें हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन प्रिजर्व्ड रहता है, यानी नॉर्मल रहता है, मोर देन 50% रहेगा, लेकिन फिर भी पेशेंट्स को सिम्टम आते हैं हार्ट फेल्यूर के। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में आपका हार्ट बहुत ज़्यादा थिक होता जाएगा, थिक होता जाएगा, मोटा होएगा, तो जो एलवी कैविटी है वो बहुत छोटी रहेगी, तो उसमें जो कार्डियक आउटपुट है वो आपका कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट्स को सिम्टम आएंगे। नेक्स्ट ये है कि इजेक्शन फ्रैक्शन को मेजर कैसे करते हैं। तो इजेक्शन फ्रैक्शन मेजर करने के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं, लेकिन सबसे अच्छा और बेस्ट मेथड है 2D इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी बहुत ही सिंपल टेस्ट है, हर ओपीडी में ये मिल जाती है इजीली, और इसमें कोई रेडिएशन एक्सपोजर भी नहीं होता, नॉन इन्वेजिव है, पेशेंट को पेन भी नहीं होता है। यहाँ पे कुछ इकोकार्डियोग्राफिक इमेज हैं, जिसमें फर्स्ट इमेज है उसमें आप देख सकते हैं जो राउंड सर्किल दिख रहा है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल यूनिफॉर्मली कॉन्टेक्ट कर रहा है, यानी इसका इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है। दूसरा इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं वेंट्रिकल का जैसे ऊपर का पार्ट है वो तो अच्छे से कॉन्टेक्ट कर रहा है, लेकिन नीचे का पार्ट बहुत स्लो कॉन्टेक्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं रीजनल वॉल मोशन एबनॉर्मलिटी। मोस्टली वो हार्ट अटैक में होता है, तो इसमें आधा पार्ट अच्छे से काम कर रहा है, आधा पार्ट काम नहीं कर रहा, लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन इसका भी कम हो जाता है। तीसरी इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं नीचे का पार्ट है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जबकि ऊपर का पार्ट अच्छे से काम कर रहा है। चौथी इमेज है जिसमें देख सकते हैं आप यूनिफॉर्मली, यानी पूरी एलवी है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, प्रॉपर कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, बहुत स्लो कांटेक्ट हो रहा है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल हाइपोकाइनेजिया, यानी पूरी वेंट्रिकली काम नहीं कर रही है। ये मोस्टली हार्ट फेल्यूर या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इको में ये भी पता लगा सकते हैं कि जो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ है उसका क्या कारण है, हार्ट अटैक के कारण कम हुआ है, हार्ट फेल्योर के कारण कम हुआ है, या कोई वाल्वल पैथोलॉजी के कारण कम हुआ है, या कोई हार्ट की मसल्स की दिक्कत है जैसे डीसीएमपी एंड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हुआ है। इसलिए इको बहुत अच्छा टेस्ट है, और इसमें कोई डाई भी इंजेक्ट नहीं करना पड़ता, इसलिए जो CKD पेशेंट या जिसका क्रेटिनिन ज़्यादा रहता है उस लोगों में भी इजीली कर सकते हैं। दूसरे टेस्ट है जैसे MRI है, CT स्कैन है, न्यूक्लियर स्कैन है, और कार्डियक कैथेटराइजेशन है। इन चारों कंडीशन में पेशेंट्स में डाई भी दी जाती है, रेडिएशन एक्सपोजर भी होता है, और ये जो सीवियर हार्ट फेल्यूर वाले जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम है या किडनी भी अफेक्टेड है, उन लोगों में ये रिस्की रहते हैं, तो इसलिए इन लोगों में ये सेफ नहीं है। Okay, so you have understood about the ejection factor and हम क्या कर सकते, what we can do in this, huh? I told you there are, you have seen many symptoms, dyspnea दे सकते हैं, we can give dyspnea, we can give OM heart, we can give palpitation, and we have to support him with our remedies. Let them be with the supervision of the the qualified doctor. So we will support him through our vibronics and the spiritual healing, and even we have seen OM7 works like anything. Within 15 days, I have seen changes in the patient coming with a lot of strength. When someone is ascending the staircase, they
they feel breathless, but after taking this OM7 and the heart balance, they have improved a lot. Okay, so for the today, it is we will end here. We will be available tomorrow again in between 10 to 12. We will select most wonderful chapter because we are left with the one more month. So one more month means go to 8 classes. So we will selectively we will choose we'll choose the practically oriented because you have seen in my previous sessions, I mean courses, we have started with the physiology anatomy, but here we started with the practical application of the remedies. So I will make a flow chart. I'll make it very easy for you so that how to go about where someone comes, how where to think, because you are given the ocean of knowledge, information, and you are likely to get confused where to start. So not to worry at all because here because you should know what is the toughest path, what is the deepest knowledge you should know, and where to start. That is very important. I have shared all the medical notes to you. There is a link of Google Drive link. Please download that and do not panic. Just try to read it as a novel. They are very good information. I told you everyone that do not read just like that. If you are handling any case, for example, if you are handling any cardiac cases, or you can say autism cases, or you read that particular topic only. Rest all I have covered you. Like a मोटा हमने cover कर दिया है. So when you want to go in deep, you can discuss with me. If I am not able to understand, I'll get the information from someone and I'll try to make you understand. ठीक है ना? तो इसलिए those all books you read just like that because spiritual healer definitely we need little bit of knowledge of all pathology and and anatomy and where is the bone, or you can say someone comes with a report, at least you should know where you should project your spiritual healing. ठीक है ना? So for that reason, so it is must to know and you never get afraid of anything. And I am also making very soon the SOP for setting up the healing center. SOP is that SOP standard operating procedure for setting up the healing center. Because if you follow that, because since we have taken the permission with a strict condition that everyone must know what are the conditions we have taken the permission from the government to run a healing center. Okay? So thank you so much for the today. I will find out some again. We are left with a very few classes. I will select that too practical oriented, and by the time and someone is not having the machine, I know people are waiting for me. I'm extremely sorry for the I lost my father. I could know because we are we have to do the rituals for 14-15 days, so I was locked, and so I'm extremely sorry, and I'll try to make your all demand, those are already paid and waiting. Very soon I will complete and give you. And thank you for your all patience, and we will continue and see our course may end, but our knowledge, acquiring the knowledge and taking the knowledge, it will not end, because our for example, our Harmeet madam is from the first batch. She is attending the third batches also, means the third course, but still she is attending. I would like to and
entertain like that, because you will learn many things, because I have not made any fixed syllabus. I'll be telling whichever is no आज का वो आज के ताजा खबर उसके जैसा आज का रिक्वायरमेंट क्या है, so that you will gain more and more knowledge, and you are allowed to join the future classes also. So let us learn, and so let us make this learning journey wonderful. You please bring your demands, like how do you want me to cover the syllabus, or what else you want to know. That's all, everything I'll make a systematic plan. So how the case taking should be done and everything. So you also make a note that what you like to know about this Vibronics, and and I will make a flow chart. Flow chart means, okay, someone is coming with this, you go to this page number, this, like that I will make. Don't worry. So very soon I'll start making it, and by end of this course, you will be able to handle independently. That is this one. So you can give, that Vibronics is a wonderful spiritual healing system. It is a drugless therapy, completely only thought infused water and pills we use with a great success, along with the other therapies. We are not supposed to stop any other therapy, because they themselves, doctor says that, okay, this is enough for you, stop, then you can definitely. And Prabhuji and some all in team members are doing miracles. I'm very happy that you are taking the Vibronics to next level. So thank you so much for involving yourself in this technology. Really, God-given technology is wonderful. And one more thing I just wanted to share with you, because I went through all the rituals when my father passed away. All those things are exactly matching with our Vibronics technology, because everything is symbolic. Everything is symbolic. And they are telling they will be going 12, they will be passing the 12 cities, and for them they will be one small umbrella made of गेहूं का आटा से बना हुआ हस्क, एक छोटा सा अम्ब्रेला, उसमें कोई हमारा उंगली भी नहीं बढ़ता उतना. And like that, they are all symbolic. When you do symbolically, that actually happens. They say, see, this umbrella we are sending to your father when he is going from one city to another city, he will be given this one. He will be given this umbrella. Like that, everything, many things, and we did many rituals by using his one bone. By one bone, we did lot of rituals. We gave him so many things. We gave him a body of 6 inches. This is all explained by our Panditji, who was doing the rituals. He gave him, now you see, he was in the spirit. Now we gave him 6 inches of body. So he will travel through all these 12 cities. So like that. So whatever you give as a danam, that will go to them. Means everything is Vibronic. Everything is connected to these thoughts. So as many times Harmeet madam used to tell me, you can do this, you can do that. Definitely, by going through that, any thought can be converted into a symbolic. Any thought can be converted into a card. Any thought can be converted into a frequency, and that can be used for present, past, and future. So that is what what we learn from every event. So this I learned. I know it is exactly matching with our all rituals are exactly radionic procedures, and definitely we can do much more with our radionics. Thank you so much for listening my experience. Okay, thank you so much. We will meet tomorrow, and we will select a very good this one. I'll start working on
the protocol, like, just like when someone comes to you, how you have to go about, and you can add कि मैं ही दीड पंडित नहीं हूँ, you are all very good experienced people, you can make your own and you can share your own if anything else. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Namah Shivaya. Namaste. Hare Krishna, Hare Krishna.